Hello friends, this is lecture number 28 and we are learning bill of exchange. One drawer and many drawing is the title. Remember, here we have to pass journal entry in the books of Akshay. Listen to the problem carefully. Rajesh renews his acceptance to Akshay for rupees 9,000 by paying rupees 4,000 in cash and accepting a new bill for balance plus interest at 9% per annum for 4 months. So here we have to pass entry in the books of Akshay. So write at the top, in the journal of Akshay. Akshay deals with various party and we have to start with that. पहला पार्टी दिया है राजेश. इसमें लिखा है कि राजेश renews his acceptance to Akshay. इसका मतलब थोड़ा समझ लेगा कि here this is Mr. Akshay and this is Mr. Rajesh. अक्षय ने पहला बिल ड्रॉ किया था इसके ऊपर और इसने बिल एक्सेप्ट करके इसके पास दिया था, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर अक्षय. अक्षय इसे बोलेगा राजेश एक्सेप्टेंस. दिस बिल इज नोन एज राजेश का एक्सेप्टेंस. सो राजेश का जो एक्सेप्टेंस है ड्यू डेट नज़दीक आ गया तो राजेश इज अनेबल टू मेक पेमेंट. दैट्स व्हाई ही रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस. अमाउंट ऑफ बिल था 9,000. राजेश इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ 9,000 ऑफ द ड्यू डेट and therefore he requested Akshay to renew the deal. तो उनमें एग्रीमेंट हो गया. उस हिसाब से देखो क्या हो गया, the transaction given of renewal. कि राजेश renews his acceptance for rupees 9,000 by paying rupees 4,000 in cash and accepting a fresh deal for balance plus interest at 9% for 4 months. Remember, तो इसमें क्या हो गया देखो, we have to pass 4 entry here again. इन द बुक्स ऑफ अक्षय. पहला एंट्री आएगा 9,000 का बिल कैंसिल करो. कैंसिल द ओल्ड बिल ऑफ 9,000. दिस एंट्री वी हैव टू पास. देन राजेश पेड 4,000 पार्ट पेमेंट. दैट एंट्री वी हैव टू पास. 4,000 पार्ट पेमेंट. अक्षय को 4,000 मिला फ्रॉम राजेश एज अ पार्ट पेमेंट. So that entry we have to pass. So balance कितना रहेगा 5,000. Out of 9,000, 4,000 is received. Balance left 5,000. For this by 5,000, Akshay charge interest on Rajesh. How much percent is given? 9% for 4 months. सेकंड बिल जो ड्रॉ करने वाला वो 4 महीने का है. इसलिए 4 महीना लेट होने वाला पेमेंट के लिए 5,000 का. इसमें 4 महीने का इंटरेस्ट Akshay is going to charge on Rajesh. So 5,000 into 9% into 4 months out of 12. This is how you have to do the calculation and find the amount of interest which is charged by Akshay on Rajesh. So 4 ones are 4 threes are 3 ones are 3 threes are 0 get cancelled. 50 into 3 150. So rupees 150 interest charge. Interest charge by Akshay on Rajesh for balance 5,000 for 4 months. So this entry we have to pass. This interest is charged by Akshay on Rajesh, which is not paid by Rajesh immediately. So that balance we have to include in this 5,000 balance. So total balance कितना बाकी है 5,000 plus 150. So 5,150 टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. उसके लिए न्यू बिल अक्षय विल ड्रॉ, राजेश विल एक्सेप्ट. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल. So these 4 entry we have to pass for this given transaction. Here Akshay is drawer, Rajesh is drawing. In the books of Akshay we are passing entry. So think from this side. पहला entry आएगा for the cancellation of old bill. Old bill now we have to cancel. So just like this one we have to pass entry. In the books of drawer always Probably account should be debited whenever bill is dishonored or cancelled. You know it. So Rajesh account debit करो. Rajesh account debit. और क्रेडिट करने का 4 में से क्या है? Nothing is mentioned करके she retain the bill with himself. तो BR को क्रेडिट करो. Bills receivable.
9,000. So एक तरह से बिल खत्म हो गया. So there is an asset that goes. So credit what goes? Being the bill cancelled. So this is first entry for cancellation of this old bill of 9,000. Just like this one, this entry मारने का. Drawings account debit to bills receivable account. When bill is cancelled, bill is written by drawer with himself in that case. Then second entry we have to pass for the part payment 4,000 paid by Rajesh to Akshay. So from the side of Akshay we have to pass entry. Remember. Watch very carefully. Now Rajesh supposed to pay 9,000 actually, but he could not pay. So Rajesh is our debtor by 9,000. He has to pay 9,000, but he paid 4,000 as a part payment. So it is 4,000 in cash. Rajesh paid to Akshay. This entry now we have to pass. Akshay फिर इधर से देखो कैश कम से तो कैश अकाउंट को डेबिट करो एंड राजेश इज गिवर क्रेडिट द गिवर यू नो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. तो राजेश का खाता क्लियर हो गया 4,000 से 9,000 में से 4,000 क्लियर हो गया 5,000 बैलेंस. तो राजेश इज गिवर राजेश अकाउंट क्रेडिट एंड कैश कम्स इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. तो अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री वी हैव टू पास लाइक दिस. कैश अकाउंट डेबिट to Rajesh account. Rupees 4,000. Being part payment received. So this entry is also finished. Now third entry you have to pass for the interest charged by Akshay on Rajesh. $5,000 बैलेंस बाकी है. For the balance amount, interest is charged at the rate of 9% for 4 months. Interest charged by Akshay on Rajesh. Interest charged 150 by Akshay. This is not paid by Rajesh immediately. He will pay later on, and that is that amount is included. So from the side of Akshay, interest क्या हो गया? Income हो गया. अक्षय के लिए interest क्या है? Income. Whether it is received or not, but it is income. Income है तो credit होगी. You know the rule of nominal accounts. Debit expenses and losses, credit income gains and profits. So interest account credit. अगर राजेश paid cash, if Rajesh would have paid cash, तो cash comes in, cash account debit अक्षय करेगा. But cash is not paid, so Rajesh का अकाउंट डेबिट करो, he become debtor. उसकी उधारी बढ़ गई. So जिसका उधारी बढ़ गया वो हमारा डेटर बन गया. डेटर जो बनता है वो हमारा डेबिट करेगा. तो राजेश अकाउंट डेबिट करो टू इंटरेस्ट अकाउंट. सच एंट्री वी हैव टू पास. Remember, this is one drawer, many drawers. This is the nature of problem. First of all, we are passing entry with Rajesh. Akshay का dealing with Rajesh. 150. Being interest charge. Now the fourth one, the last one. ये भी एंट्री हो गया. कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट. नाउ बैलेंस कितना रहेगा? 5,000 बाकी है, 150 भी बाकी है. टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 5,150. राजेश हैज टू पे टू अक्षय एंड फॉर दैट 4 महीने का किसने ड्रॉ किया? अक्षय ने, व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय राजेश. दैट इज नाउ वी हैव टू पास. 5,150 4 months. So Akshay draws the bill, Rajesh accepted and give it back to Akshay. So for Akshay, this is bill receivable. DR comes, so debit what comes?
and Rajesh is giver, so credit the giver. Accordingly, that entry we have to pass now. Bills is your account debit. To Rajesh account. अशा प्रकारे चौथी एंट्री मध्ये आपण 5,150 रुपयासाठी 4 महिन्याचं बिल ड्रॉ केलं. राजेश अक्षय ड्रॉचं बिल ऑफ राजेश फॉर 5,150. 5,000 बाकीमध्ये 150 बाकी नाही, टोटल 5,150 बाकी आहे. जेवढे बाकी असतील तेवढ्या बॅलन्ससाठी तेवढ्या आउटस्टँडिंग अमाऊंटसाठी बिल ड्रॉ केले. अक्षय ड्रॉचं बिल ऑफ राजेश लाईक टू लास्ट मंथ. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रिन्युअल ऑफ बिल. या सगळ्या प्रोसेसला रिन्युअल ऑफ बिल म्हणतात. बिलाचे नवीकरण. जुने बिल कॅन्सल केले, पार्ट पेमेंट केलं, इंटरेस्ट चार्ज केलं आणि एकूण जे शेवटी बॅलन्स राहिले 5,150 त्यासाठी नवीन बिल ड्रॉ केलं, फ्रेश बिल ड्रॉ. तर बिलाची एंट्री बिल सीजन आपण डेबिट टू राजेश अकाउंट नेहमीप्रमाणे बिल फ्रेश ॲक्सेप्टन्स रिसिव्ह संपला. अशा वगैरे डिलिव्हरीची एंट्रीमध्ये राजेश बरोबर हा ट्रान्झॅक्शन दिला होता, ती एंट्री मारली. पुढे काय दिसते बघू. त्याच्या आधी लेट मी अबाउट दिस. एंट्र्या सर्व तशाच आहेत, फक्त प्रॉब्लेमचं नेचर म्हणजे स्वरूप वेगळं आहे. एक ड्रॉवर आहे अक्षय, त्याच्या अनेक ड्रॉविंगबरोबरचे ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत. ते आपल्याला एंट्र्या मारतात. दिलेल्या ट्रान्झॅक्शनच्याच फक्त एंट्र्या मारायच्या. तिथे आपल्याला राजेश बरोबर जे ट्रान्झॅक्शन झाले त्याच्याच एंट्र्या मारायच्या. आता याच्या पुढे दुसरी पार्टी. अक्षय तो 30 पार्टी बाकी समोरची पार्टी आता चेंज होईल. प्रशांत ही दुसरी पार्टी आहे. प्रशांत ॲक्सेप्टन्स टू अक्षय. प्रशांतचं ॲक्सेप्टन्स अक्षयला. याचा अर्थ समजायचं की अक्षयने ड्रॉ केलेलं बिल प्रशांतमध्ये तिने बिल ॲक्सेप्ट करून दिलं होतं. या बिलाला प्रशांतचे ॲक्सेप्टन्स म्हणजे प्रशांतचे बिल. तो प्रशांत ॲक्सेप्टन्स टू अक्षय. अक्षयचे बिल सुरू. तो वाक्य ऐकाने प्रशांत ॲक्सेप्टन्स टू अक्षय फॉर दिस 7,000 रिटायर्ड 2 months बिफोर द ड्यू डेट ॲट अ डिस्काउंट ऑफ 12%. तर 7,000चं बिल होतं, 7,000चं बिल होतं. समजा दिस इज द डेट ऑफ बिल. and this is the term of bill and this is the last date मतलब due date. ड्यू डेट ही शेवटची तारीख ज्या दिवशी त्यांनी पैसे दिले पाहिजे अक्षय. बिफोर द ड्यू डेट ह्या तारखेच्या आधी 2 महिने आधी 2 months बिफोर द ड्यू डेट म्हणजे ह्या तारखेला हे पैसे लवकर दिले पैसे. सो वेन ड्रॉवी मेक्स अर्ली पेमेंट इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल. बरोबर. या ठिकाणी प्रशांतने बिल रिटायर करून टाकले. सगळे पैसे दिले 7,000 रुपये. समजा लवकर पेमेंट केल्याबद्दल आपला अक्षय त्याला डिस्काउंट देतो. किती डिस्काउंट देतो बघा. तर ह्या 2 महिन्यासाठी 2 महिने लवकर दिल्याबद्दल 12% तो डिस्काउंट देतो. तर बघा 7,000 वर यू कॅल्क्युलेट 12% डिस्काउंट फॉर 2 months आउट ऑफ 12. 12 पैकी 2 महिन्यात 2 महिने आधी पैसे देतो. ही गिविंग पेमेंट बिफोर ड्यू मंथ बिफोर द ड्यू डेट. सो फॉर दिस 2 months he will get benefit from Akshay. Akshay is going to do discount for 2 months since he makes early payment. So 2 महिन्याचे किती होतं बघा. 12 वजा 12 वजा 0 गेट कॅन्सल. तो 7 दिले 14 140 रुपये. 140 रुपये डिस्काउंट देतो. इसका मतलब समझ कि प्रशांत पेड 7,000 तो अक्षय. बिल का अमाउंट कितना था 7,000. ही पेड 7,000 आउट ऑफ द 140 तो उसको रिटर्न कर दिया as a discount. That is called rebate. So Akshay give rebate to Prashant 140. So how much exact cash he accepted? तो इसको कितना कैश मिला माइनस करो. 6,860. तो 7,000 उसने दिया था उसमें से 140 उसको रिटर्न किया एज ए डिस्काउंट.
तो आपकी बैलेंस जो है 6,860 ही एक्सेप्टेड है। तो अभी एंट्री कैसा रहेगा बहुत अच्छा है अच्छे साइड अच्छे से दिखने के बाद ये जो कैश है कम से कैश अकाउंट को डेबिट करो। ये जो डिस्काउंट 140 गिवन बाय अक्षय टू प्रशांत इट इज एन एक्सपेंस फॉर अक्षय के लिए एक्सपेंस तो डेबिट करो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये दोनों जरूरी। तो फिर कैश कम्स इन कैश अकाउंट है सिमिलरली एक्सपेंस रहेगा लॉस रहेगा तो डेबिट इनकम रहेगा तो क्रेडिट ये तो रूल ऑफ नॉर्म लगाता है। और BR नाम का भी ऐसे है वो खत्म हो गया गोज आउट 7,000 का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तो व्हेन असेट गोज आउट वी क्रेडिट व्हाट गोज आउट यू नो आज को तो रूल देयर आर 2 डेबिट एंड 1 क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट राइट हियर B1 कैश अकाउंट डेबिट वेट इट बी कैश अकाउंट डेबिट 6,850 then rebate account debit is an expense rebate account debit 140 two bills is in account जब भी बिल ऑन होता है बिल शुरू को क्रेडिट करते that asset finish no balance that's all 7 bill debit retired and rebate given rebate given right properly so this is the transaction between Akshay and Prashant. अभी third transaction is given about Sunil's acceptance. हाँ वो हम देखेंगे उससे पहले between about this. Third party is Sunil. वाक्य नीट वाचा आपने ठरवून घ्या नक्की ट्रान्झॅक्शन काय दिलं आहे बरोबर होता exactly identify what is the transaction given and then proper entry should be filed. So practice will make you perfect. Maximum problem is solved. Then you will be able to do it easily. Now listen very carefully. Bank informed Akshay as to dishonor of Sunil's acceptance for which 2,000 to Akshay discounted with bank. Bank paid loading charges to this court. इसका मतलब समझ लेगा कि पहला सुनील के ऊपर बिल ड्रॉप किया था अक्षय ने 2,000 का सुनील इधर रॉबिन इसने बिल एक्सेप्ट करके इसे दिया था तो इसके पास वो बिल रिजर्व था तो ये पहला एंट्री नहीं मारने का फिर इसने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया था वी ऑल्सो डोंट हैव टू पास दिस एंट्री बैंक में डिस्काउंट किया अभी बैंक ड्यू डेट की जब गई इसके पास तो इसने बिल डिसऑनर किया ये करंट ट्रांजैक्शन था इसका एंट्री मारना यू हैव टू पास एंट्री फॉर दिस बैंक ने नोटिस चार्जेस पेड किया ₹40 का ₹40 so bank inform Akshay that Sunil's acceptance which was discounted with the bank is dishonor and bank paid notice charges ₹40 बँकेने अक्षयला सांगितले कळवले की तुम्ही जे सुनीलची बिल आमच्याकडे डिस्काउंट केले होते ते बिल ड्यू डेटला डिसऑनर झालेलं आहे आणि आम्ही नोटिस चार्जेस काही सगळं पे केले आता ह्या ट्रान्झॅक्शनची एंट्री फक्त मारायची आपली करता आधीची एंट्री नाही मारायची आधी बिल ड्रॉ केलं होतं ती एंट्री नाही मारायची मग बिल बँकेत डिस्काउंट केलं होतं ती एंट्री नाही मारायची डायरेक्ट ओनली जे करंट ट्रान्झॅक्शन जो आता दिला आहे ये बिल डिसऑनर हो गया that entry value pass. So right here C. So only one entry value pass for this transaction. कैसे रहेगा बिल डिसऑनर होगा तो in the book of drawer always we debit drawing account whenever bill is dishonored drawing become debtor. So इसका अकाउंट डेबिट होगा तो सुनील का अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट करने का बिल का 4 ऑप्शन आपको सिखाया था कि whenever
ड्रॉइंग बिल एक्सेप्ट करके इसको देता है, जिसके बाद बिल होता है इस बिल का। ही गॉट 4 ऑप्शन टू डू, 4 ऑप्शन उसके पास है। क्या क्या कर सकता है? एक बिल अपने पास रिटेन कर सकता है, आपल्या जवळ ठेवू शकतो। दूसरा काय ऑप्शन है? ही कैन बिल बैंक में डिस्काउंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक में कलेक्शन को भेज सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि एंडोर्स कर सकता है। मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से उसने क्या किया वो देखने का, उसको क्रेडिट कर सकता है। तो वेनर पीरियड डिजाइन डेबिट इसको करने का ऑब्वियस, लेकिन क्रेडिट किसको करने का? ये 4 में से क्या हुआ देखिए। बिल का क्या हुआ? रिटेन क्या होगा? तो बिल से अकाउंट को क्रेडिट करो। बिल अगर बैंक में डिस्काउंट किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। बिल अगर बैंक में कलेक्शन को भेजा है तो बैंक और कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर बिल एंडोर्स किया है तो एंडोर्स का नाम लो, क्रेडिट। समझा? इसमें इन ट्रांजेक्शन बिल डिस्काउंट किया था बैंक में, तो बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अभी अमाउंट कैसे लिखने का? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। 2000 का बिल है, 40 रुपये का नोटिंग चार्ज, तो राइट 2004 being the bill dishonor and noting charges paid by bank. So this is all. This is the transition given of the current. That is the current. A, B, C, D 4 ऐसा ट्रांजेक्शन देंगे। नॉर्मली A हो गया, B हो गया, C हो गया। Let us see what is given in the D. इसमें कौन सा बात है? ये पार्टी फिक्स रहेगा, सामने वाला पार्टी चेंज होता रहेगा। ऐसा 4 पार्टी का ट्रांजेक्शन एग्जाम में आ सकता है। देखो 14 नाम है रोहित। रोहित declared insolvent who had accepted Akshay's bill for ₹14,000 and only 20 paise in a rupee could be recovered as first and final dividend. रोहित को कल 14,000 का बिल ऑलरेडी ड्रॉ किया था। रोहित वॉज ड्रॉ। जस्ट वॉच केयरफुली क्या हुआ था। दिस इज अक्षय एंड दिस इज मिस्टर रोहित। पहले अक्षय ने 14,000 का बिल ड्रॉ किया था रोहित के ऊपर। रोहित एक्सेप्टेड एंड गिव इट बैक टू मी। सो डोंट पास एंट्री फॉर बिल। इसी एंट्री मारायची नाही। त्यांनी बिल ड्रॉ केलं, रोहितने ॲक्सेप्ट केलं, रोहित झाला ड्रॉ बिल। अक्षय आहे ड्रॉवर। हे बिल ह्याच्याकडे आहे। ड्यू डेटला कळालं, ड्यू डेटच्या आसपास की रोहित बाबा इन्सॉल्वंट झाला, त्यामुळे ते बिल डिसॉल्व होणार। तो रोहित बिकम इन्सॉल्वंट, तो दिवाळखोर झाला। इन्सॉल्वंट म्हणजे दिवाळखोर होणार। जेव्हा ड्रॉवी दिवाळखोर होतो, ऐका पुन्हा एकदा की रोहित डिक्लेअर इन्सॉल्वंट, रोहित इन्सॉल्वंट म्हणून डिक्लेअर झालेला आहे। ज्याने ह्याच्याकडनं बिल ॲक्सेप्ट केलं तो 14,000। जेव्हा समोरची पार्टी इन्सॉल्वंट होते, ड्रॉवी जेव्हा इन्सॉल्वंट होतो, वेन ड्रॉवी बिकम इन्सॉल्वंट, तो पहिला एंट्री कोणता मानेगा? ये जो बिल है वो डिसऑनर होगी। सीधा डिसऑनर का एंट्री मारो पहला एंट्री। ये जो बिल रिसीवेबल है 14,000 का, इट इज डिसऑनर, वो एंट्री मारो। ये डिसऑनर एंट्री कैसा है करने को? वेनर बिल डिसऑनर, ड्रॉवर के बुक में हम ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करते आपको मालूम है, तो रोहित अकाउंट डेबिट डी रोहित का अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करने का अभी बताया मैंने। 4 में से क्या हुआ? नथिंग इज मेंशन, दैट मींस उसने अपने पास ही भी रखा था। बिल सिक्योर क्रेडिट टू बिल सिक्योर। Being the bill dishonor before the due date, ऐसा नैरेशन भी before the due date,
ड्यू डेटपर्यंत वाट बघायची नाही. जेव्हा आपल्याला कळतं की ड्रॉविंग इन्फॉर्ममेंट झालेला आहे त्या ड्यू डेटपर्यंत थांबायचं नाही. सरळ पहिली एंट्री मारायची बिल इन्फॉर्ममेंट झाल्याची. बिफोर द ड्यू डेट बिल डिसऑर्डर असा टाकायचं. आणि आता त्या रोहितकडे 14,000 वसूल करायला द्यायचं. वी हॅव टू ट्राय टू रिकवर 14,000 फ्रॉम रोहित. ही इज आवर डेटर बाय 14,000. तो आपला डेटर आहे. 14,000 वसूल करायचा हवा. मिळतील तेवढे घ्या. बाकीचे मुद्दे आता समजा कारण तो दिवाळखोर झालेला आहे. दिवाळखोरचा अर्थ त्याच्याकडे भरपूर कर्ज आहे आणि ॲसेट कमी कर्ज फेडायला. द पर्सन हुज ॲसेट्स आर लेस compared to his liability and is not in a position to make full payment of all liability, he cannot clear all his liability fully. So full payment is not expected from such person. Part payment can be received. जितना मिलेगा वो पार्ट पेमेंट ले लो. बाकी आपका लॉस हो जाएगा. इस पर बैठ जाए तो कितना मिला 20 पैसे इन रुपी. रुपयामध्ये 20 पैसे मिळाले. तो वो सेकंड एंट्री रिकवरी का मारना. फर्स्ट एंट्री हो गया डिसऑनर का और सेकंड एंट्री वी हैव टू पास फॉर रिकवरी. कितना रिकवर किया 20 पैसे इन रुपी. रुपया 100 पैशाचा असतो. 100 पैसे म्हणजे 1 रुपया. 100 पैशापैकी 20 पैसे मिळाले अशी बोलण्याची पद्धत आहे. म्हणजे 100 पैकी 20 मिळाले म्हणजे 20% मिळाले. समजा लिहिताना असं लिहितात त्यांनी की 20 पैसे इन रुपी किंवा 30 पैसे इन रुपी 40 पैसे इन रुपी असं देतील तुम्हाला. रिकवर्ड ॲज फर्स्ट अँड फायनल डिव्हिडंड. तुम्हाला पहिला आणि शेवटचं त्यामध्ये पैसे मिळाले. त्या रक्कम मिळणार नाही. हा त्याचा मग रोहित हॅज टू पे 14,000. रोहितला 14,000 देणे लागतील आपल्याला. ही सपोज टू पे 14,000 टू आपको. अक्षय पेड फॉर रिकवरी लेकिन उसको मिला कितना कैश ओनली 20 पैसे इधर रुपी. 14,000 के 20% में 14,000 है मल्टीप्लाय बाय 20 पैसे इधर रुपी. 100 पैशापैकी 20 पैसे काय हा त्याचा 0 गेट कॅन्सल. 1400 गुणिले 2 2,800 मिळाले. तो ही रिकवर 2,800 दिस मच कैश ओनली. तो कितना बैलेंस बच गया वो कभी मिलेगा नहीं. तो उसके बैलेंस हो तो इंस्टॉलमेंट दीवार पर कितना रेट को पानी 11,200 बराबर. 11,200 कितना लॉस हो गया आपके. ही विल कॉल इट एज बैड डेट. तो एंट्री कैसा है देखो अभी हम इन बुक्स ऑफ अक्षय इसके लिए इधर कैश जो है वो 2,800 कम सी दिस मच कैश ही रिकवर बराबर. तो कैश कम सी तो कैश अकाउंट में डेबिट करके ये रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट यू नो. तो कैश अकाउंट में डेबिट है. फिर 11,200 जो बैड डेट इसको हुआ ये लॉस है उसको. तो नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट को आपको मालूम है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो ये लॉस है तो डेबिट करो. बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिट. और रोहित ये पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट को डेबिट का रिसीवर है क्रेडिट का गिवर. ऐसा मानने का ऐसा समझने का कि रोहित ने पूरा 14,000 दे दिया वापस उसके पास मत जाओ फॉर कलेक्शन. उसने दे दिया पूरा अकाउंट सेटल हो गया. रोहित इज वॉट गिवर. तो क्रेडिट द गिवर यू नो द रूल. पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. So here Rohit is giver. He is giver of 14,000 assume this. And there are two debits and one credit such entry you have to pass. Clear to you. So here cash account debit 2,800. Then bad debts account debit 11,200 to Rohit's account. $14,000 का अकाउंट क्लियर हो गया. 11,200 रुपये ट्रांसफर किया अपने बैड डेब्ट अकाउंट में. तो राइट द नरेशन बीइंग 20% of the balance due. रिकवर जितना बैलेंस था उसमें से सिर्फ 20% हमने रिकवर किया. तो दिस यू टू राइट द नरेशन. तो अशा प्रकारे करून देतो. इथे आपले एक पर्सन आहे एक रॉबर
आणि त्या ड्रॉइंगवर त्याचे ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत ए बी जे डी. सो दिस इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लेम. फक्त प्रॉब्लेमचं स्वरूप वेगळं आहे, बाकी एंट्रन्स अशाच मनाच्या जे आपण आधी शिकलो. सो प्रॅक्टिस करा आणि परीक्षेला जसा प्रॉब्लेम येईल तसा बरोबर सोडवा आणि चांगले मार्क कमवा. ऑल दी बेस्ट.